पता ही नहीं चला कि हम कब टी ब्रेक पे चले गए। ओके राइट। अब हमारा अगला जो ऑर्गेनिज्म है इश्केरिका कोलाई, जिसको हम आमतौर पे ई कोलाई के नाम से जानते हैं। E. coli, more commonly known as E. coli, is a group containing 4 classes that cause gastroenteritis in human. The most familiar being E. coli serotype, ये उसका नंबर है, it's normal inhabitant of intestine, suppressing the growth of the harmful bacteria species. ये हमारे लिए beneficial ऑर्गेनिज्म के तौर पर आया है हमारे इंटेस्टाइन में। बेसिकली इसका वर्क जो है वो क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया स्पीशीज को सप्रेस करके रखता है और सिंथेसाइजिंग विटामिन, और विटामिन की सिंथेसाइजिंग करता है। हमारे पास जो विटामिन के है या विटामिन ई है, ये जो है इसमें ई कोलाई का काफी अहम रोल है। However, some varieties that have gone bad, कुछ ऐसा भी है जो नुकसान दे सकते हैं, produce large quantities of one or more toxin causing severe damage to the lining of the intestine. इसमें से कुछ इनके बहन भाई ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि जो हमारी इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है उसको भी डैमेज कर सकते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं। This produce hemorrhagic colitis with its severe cramping and bloody diarrhea. The illness usually self-limited, lasts for an average of the 8 days. खुद भी खत्म हो सकती है। Undercooked or raw ground beef has been behind many of the documented outbreaks. जो uncooked या not well cooked जो फूड होते हैं वो बहुत बड़ा एक सोर्स बनते हैं इस तरह के आउटब्रेक्स के लिए। But also cited have been अल्फा स्पाउट्स, जो बहुत सारी फिशेस की यहाँ पे टाइप्स लिखी हुई है, और अनपेस्चराइज्ड जो फ्रूट जूसेस होते हैं वो, गैम मीट एंड चीज कर्ड एक सोर्स हो सकता है जिससे हमारे इन्फेक्शंस, एब्डोमिनल जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है। यंग विक्टिम में डेवलप हेमोलाइटिक यूरेमिक syndrome. This can produce permanent loss of kidney functions, very dangerous sometimes. HUS is combined with 2 other symptoms, fever and neurological distress, to make up the condition. Thrombotic thrombocytopenic purpura having a mortality rate in the elderly as high as 50%. यानी अच्छा खासा बड़ा एक चंक है जो मोर्टेलिटी कॉज कर सकता है ई कोलाई उनके लिए। ठीक है। एक और हॉस्पिटल बग Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa is opportunistic pathogen, यानी ये डिजीज कॉजिंग एजेंट बनता है। ये जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करता है और डिजीज कॉजिंग एजेंट बनता है। Exploiting breaks in the host defense to initiate urinary tract infection, respiratory symptoms infections, dermatitis, soft tissue infections, bacteremia यानी bloodstream infections, bone and joint infection, gastrointestinal infection, and just a whole big variety of healthcare associated infections. Particularly active in patients with cancer, cystic fibrosis, severe burns, other immunosuppressed AIDS. This disease has a fatality rate of 50% in these patients. Half of patients जिनमें Pseudomonas aeruginosa infection develop हो जाता है, उसकी half of patients जो हैं वो death हो जाती है. According for the 10% of the healthcare associated infections, Pseudomonas aeruginosa is the 4th most commonly isolated nosocomial pathogen. Only fluoroquinolone, gentamicin, and imipenem are effective against it. And even these drugs are not effective against all strains. जो Pseudomonas की तमाम strains हैं, उसमें भी ये effective नहीं है. The fertility of treating Pseudomonas infection with antibiotic is most dramatically illustrated in the cystic fibrosis patients, particularly all whom eventually become infected with a strain so it's resistant that it cannot be treated and death is general outcome. Pseudomonas aeruginosa के अंदर एक और कैपेबिलिटी है कि ये
किसी किस्म के भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो होते हैं उसके अंदर भी ग्रो कर जाता है। तो आमतौर पे जो हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में आप देखते हैं कि एक सेवलॉन का सॉल्यूशन बना होता है और उसके अंदर थर्मामीटर डाला हुआ होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक उसमें सूडोमोनास का जो है ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह से लिक्विड सोप्स जो बहुत दिनों तक रखे रह जाएं, उसके अंदर भी सूडोमोनास ग्रो कर जाता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे एंटीसेप्टिक्स जो हैं मौजूद होते हैं, जिसको हम समझते हैं कि इसके अंदर तो माइक्रो वो है एंटीबैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल मौजूद हैं और वो ऑर्गेनिज्म को नहीं रहने देंगे, लेकिन सूडोमोनास के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो कहीं पे भी ग्रो कर जाता है। इसलिए हम मना करते हैं। जैसे सक्शन बॉटल्स के अंदर कुछ जेलो सोल्यूशन डाल के रखा जाता है कि ये एंटीसेप्टिक है, वहां पे भी बहुत बड़ा सोर्स बनता है, और ये अगर ये पेशेंट में चला जाए तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये बहुत सारी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वैसे ही नॉर्मली नेचुरली अपनी रेजिस्टेंस रखता है, और इसके अंदर अगर किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाए तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, और ये भी काफी फेटल हो सकता है अगर ये रेजिस्टेंस डेवलप कर ले। और आमतौर पे ये वेट जगहों पे ग्रो करता है, सिंक के पास जहाँ पे पानी ज्यादा देर तक पड़ा रहे, या नमी वाली जो जगह होती है जैसे एयर कंडीशंस की, जहाँ पे उनके चिलर्स पड़े हुए होते हैं, जहाँ पे पानी की ड्रिपिंग होती है, वहां पे ये ग्रो कर जाता है। वॉशरूम्स में ये ग्रो करता है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर जितनी भी ह्यूमिड एरियाज होते हैं वहाँ सूडोमोनास तेजी से ग्रो करता है। इसी तरह से वो ट्यूब्स जो बॉडी के अंदर इंसर्ट होती हैं, जैसे चेस्ट ट्यूब्स हो गई, अगर बहुत अरसे तक पड़ी हुई हैं और उनकी केयर प्रॉपर नहीं हो रही है तो सूडोमोनास वहां पे भी ग्रो कर जाता है। Enterobacteria. Enterobacteria are the facultative anaerobic gram-negative bacilli that are the part of the natural flora of the gastrointestinal tract, और ये बहुत बड़ा ग्रुप है Enterobacteria का. They are also commonly found in the soil, water and plants. Most have the flagella for the motility. मूव करने के लिए इसके छोटे छोटे से हाथ पांव होते हैं जिससे ये आगे को मूव करता है, and they don't produce spores. Enterobacteria comprises numerous genera, including Escherichia coli, यानी ये E. coli 20 के ग्रुप में शामिल है, Shigella, Salmonella, Klebsiella, Enterobacter, Proteus and the Yersinia इसके 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 पार्ट्स हैं। इसके अंदर ये पूरी एक ग्रुप जो है वो इसके अंदर ये मौजूद हैं सारे ऑर्गेनिजम्स। Virulence varies according to the ability of the organisms to metabolize lactose. Those that do not are actually pathogenic. Adherence factor also impact virulence, as some genera and the species have more effective adherence than others. Enterobacteria produce toxin that can be extremely dangerous. Enterobacteria cause less than a third of the nosocomial infection. A decreasing number, however, they cause about half of the urinary tract infections and a quarter of the post-operative infections. And increasing resistance to antibiotic sorry, increase the risk of एक मिनट
सॉरी, आप लोगों के साथ थोड़ा सा वेट करना पड़ गया। मैं थोड़ी एक काम में बिजी हो गई थी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे इंटेरोबैक्टीरिया, जो कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे बॉडी के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी रहते हैं और हर जगह पानी और मट्टी और प्लांट्स और सब जगह पे भी है। ठीक है, तो हम इस पे बात कर रहे थे आगे कि इंटेरोबैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और toxin that can be extremely dangerous. Enterobacteria cause less than a third of nosocomial infection, a decreasing number. However, they cause about half of the urinary tract infection and a quarter of the postoperative infection, and increasing resistance to antibiotic, increasing the risk of the sepsis, diarrhea, and meningitis. Many species are able to cause symptoms that are similar. So, identifying the pathogen is important. तो इंटेरोबैक्टीरिया में से कौन सा वाला ऑर्गेनिज्म है, इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है ताकि इसको देख सके। इसके अलावा इंटेरोबैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल है जब हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं और उनमें वो म्यूकोजल बैरियर इंजरी करते हैं। तो वंस ये आइडेंटिफाई हो तो उसको ट्रीट किया जाए ताकि ये म्यूकोजल बैरियर इंजरी करके ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन ना कर सके। इसके बाद हमारा बहुत बड़ा एक चैलेंज, Mycobacterium tuberculosis is a non-motile obligate aerobic bacillus that form a chain which are associated with a toxic surface component called cord factor. Mycobacterium tuberculosis is neither gram negative nor positive. ये gram negative gram positive कुछ भी नहीं है। As an extracellular agent, need oxygen, तभी हमारे ये upper respiratory tract पे ये हमला करता है। It is also a facultative intracellular invader, allowing it to evade the immune system. Human serve as the reservoir of this pathogen. इंसान खुद इसका reservoir है। The virulence is increases because of a unique cell wall composed peptoglycan, but also complex lipid that provide antibiotic resistance and include acid that protect the cell cord factor that is toxic to host cell, and wax D which protect the cell envelope. The host immune system attempt to control the spread of Mycobacterium tuberculosis by the veiling it off which macrophages, causing a positive skin reaction, cell mediated immune response, but no infection. Resistant strain are an increasing cause of the concern. Healthcare associated infection outbreak have occurred, often related to the failure to identify an infected source. माइकोबैक्टीरियम का एक और बहुत बड़ा एक जो मसला है वो उसका रेजिस्टेंस हो जाना अगेंस्ट दी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स के साथ, जिसको एमडीआर टीबी और अब हम एक्सडीआर टीबी को भी फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आउटब्रेक्स होते हैं। Multi-drug resistant tuberculosis is resistant to at least 2 commonly used first-line drugs like isoniazid, INH जिसे कहते हैं, और amphetamine, while extensively drug-resistant tuberculosis जो XDR-TB है is also resistant to all fluoroquinolones and at least one of the three second-line drug, amikacin, kanamycin, or cepromycin. XDR-TB emerged as a worldwide concern in 2005. In the United States, it is present most commonly found in foreign-born patients, but also occur in immunocompromised patients. Active TB requires treatment for extended period of time, usually 18 to 24 months, with multiple drugs. Since the 1980s, there has been increases need to be used second-line drug to combat infection. There are 2 primary causes of the increased resistance: failure to the complete a course treatment and mismanaged treatment, including incorrect medication dosage or duration of the therapy. इसके लिए डॉट यूज किया जाता है. People who have had previous TB are at increases risk and should be monitored carefully. Drug-resistant TB increasingly causes a risk of patients and staff in healthcare facilities. इसका जो इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट है पूरा इसका डाटा रखता है, कहीं पे पेशेंट ही एडमिट है फ्लोर्स पे
या हमारे हेल्थ केयर वर्कर इससे एक्सपोज हो जाएं या डिजीज एक्वायर करें, तो इसको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है आईडी टीम की तरफ से एंड आईसी टीम की तरफ से। One more very dangerous organism, Legionella. Legionella is a gram-negative obligate aerobic bacillus that is motile. Legionella is comprises of the 48 species, but Legionella pneumophila causes 90% infections, most often in those who are immunocompromised. यानी immunocompromised के लिए हर जगह ये मसाइल है. Legionella is an intracellular pathogenic agent that replicate within monocytic phagocytes, depending on the availability of the iron and alveolar macrophages. Both antibodies mediated with can result in the long-term resistance and cell-mediated immunity response occur to combat infections. Legionella colonize water distribution system because it can survive chlorine treatment. It grow well in hot water tank. जिन दिनों बहुत गर्मी होती है 45 सेंटीग्रेड की वार्म वाटर के अंदर ये आराम से ग्रो कर जाता है और हमारे ओवरहेड टैंक्स के अंदर ये ग्रो करता है और इनहेल करने से ये बहुत सारी डिजीजेस देता है. इसके अलावा एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर डिस्पाइट white bleed have not been implicated in the spread of infection. Nosocomial infection correlate with use of the ventilators, intubations, and nasogastric tubes. Using tap water instead of the sterile water to clean equipment can lead to infections. इसीलिए कहते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर वाटर जो है वो ट्रीटेड वाटर यूज होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट्स की क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर यूज होना चाहिए और पेशेंट के जो ह्यूमिडिफायर्स हैं उसके अंदर स्टेराइल वाटर डालना चाहिए ताकि इसके अंदर ये लेजियोनेला जो है वो ग्रो करके पेशेंट के लिए इन्फेक्शन का बायस ना बने. The most common infection as Pontiac fever, which is flu-like, and pneumonia, which can lead to dissemination of the pathogen throughout the body, causing multi-organ failure, जो कि sepsis करके multi-organ failure का बायस बनता है. Clostridium difficile हमारे यहाँ का इतना ज्यादा इशू नहीं, लेकिन ओल्ड हाउसेस इन ओल्ड होम्स में बाहर के ममालिक में इसका बहुत बड़ा एक सोर्स है जो कि इन्फेक्शन स्प्रेड करता है और बहुत बड़े आउटब्रेक्स इसकी वजह से होते हैं. तो क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल इज एन anaerobic gram positive bacillus that produces endospores. It is commonly found in healthcare facilities. Normal intestinal flora provide resistance to a C. diff, but if the flora is disrupted by the antibiotic use or sometimes chemotherapeutic agent and the host is an asymptomatic carrier or has acquired infections during or after treatment, then C. diff can begin to overgrow. C. diff produces a lethal cytotoxin, toxin B, and an endotoxin with the cytotoxin action, toxin A, that causes fluid to accumulate in the colon and the severe damage to the mucous membrane. C. diff causes more healthcare associated infections like diarrhea cases than any other microorganisms. सबसे ज़्यादा करता है C. diff. All antibiotic can cause C. diff infections, but clindamycin and the cephalosporin are most frequently implicated. Symptoms vary widely from the mild diarrhea to lethal sepsis. It can cause diarrhea, colitis, and the pseudomembranous colitis, and the megacolon. Infection may not be obvious for weeks after completion of the antibiotics. एस्परजिलस एक फंगस टाइप है, मोल्ड्स हैं, फंगाई हैं ये. एस्परजिलस स्पीशीज आर द फिलामेंटियस हैविंग लॉन्ग थ्रेड फंगाई. बड़ी खूबसूरत शक्ल आती है इसकी, प्लेट में लाइट ब्लू सी कलर का और फूलों की तरह खिला हुआ और टेल के साथ होता है. which increasingly cause nosocomial infections. They are the ambiguous in the environment, and the aerobic grow as mold and produces spores that become airborne and can invade the respiratory tract. बहुत ज़्यादा
उस वक्त रिस्क होता है अमूमन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में या आईसीयू के जो पेशेंट्स होते हैं इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट्स के अंदर, अगर उनकी मौजूदगी में कोई भी कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन वाला काम किया जाए तो आमतौर पे ये दीवारों में और सीमेंट के अंदर चुप करके बैठा हुआ होता है, लेकिन जरा से भी इसको एजिटेट किया जाए तो ये एयरबॉर्न बनता है और एयर के थ्रू ये इन्वेड कर जाता है रेस्पिरेटरी में और चेस्ट फंगल इन्फेक्शन कॉज करता है। और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर ये बहुत फेटल है। There are about 180 species, but about 20 are human pathogens. Most healthy people are resistant to Aspergillus. उनको इतना मसला नहीं करता, but it can invade almost all organs. Although rarely infection the blood, लेकिन करता है। कभी कभी हमने खुद इसको देखा है कि जो immunocompromised patients होते हैं इनको blood stream infection भी करता है। Invasive infections occur in those who are immunocompromised, such as those having transplant are receiving chemotherapy, क्योंकि immunocompromised patients होते हैं। Mortality rate as high as 90% of invasive infections, and treatment often involves surgical debridement as well as medical treatment. Mold remediations, high efficiency particular air filtration and laminar airflow rooms have been used to avoid infections. ऐसे रूम्स जहाँ पे इस तरह के इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स रखे जाते हैं वहाँ पे हिपा फिल्टर्स और लेमिनार एयर फ्लो रूम्स को यूज किया जाता है ताकि एयर जो है वो फिल्टर होकर पेशेंट्स के पास आए। एंड एंटी फंगल प्रोफाइलैक्सिस may also be indicated. Fumigators and the flavors cause most invasive infections. Fumigators and the clavitis activate the antigen antibody immune response causing a hypersensitivity reactions. और ये इसका बहुत बड़ा एक इंसिडेंस हो सकता है उन ऑपरेशन थिएटर्स में भी जहाँ पे कि हमारे पास अच्छा इफेक्टिव पॉजिटिव प्रेशर हिपा फिल्ट्रेशन नहीं है या लैमिनार फ्लो नहीं है। इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज एरियाज में आईसीयूज के अंदर ये बहुत ही खतरनाक किस्म का इन्फेक्शन करता है जिसका मोर्टेलिटी जो परसेंटेज है वो काफी हाई है। पल्मोनरी Aspergillosis caused by the fungus aspergillosis is commonly found on dead leaves, जो आमतौर पे प्लांट्स और इन चीजों को भी मना किया जाता है। और बर्ड ड्रॉपिंग्स, कबूतर या इस तरह की कोई चीजें जो कि आके कहीं पे भी अपना घोंसला बनाते हैं और वो रह जाते हैं। Compost piles, pulmonary aspergillus form a fungus ball at the site of the previous lung disease and becomes invasive pulmonary aspergillus when the infection spread. Affecting any organ including heart, lung, brain and kidney, and as a disease spread the nervous system and skin and difficult to cure, क्योंकि एंटीफंगल्स इतना लंबा टाइम लेती हैं इसको ट्रीट करने के लिए और वेरी एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं और इसका जो जितना टाइम ये लंबा लेती है क्योर करने के लिए इतने तक पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इवेंचुअली कॉज मल्टी और it is treated with the antifungal medications. The kind of immunosuppression and blood cells count typical of patients who have had chemotherapy or bone marrow transplantation are major risk factor. Patients with an invasive form pulmonary aspergillosis are usually critically ill and prognosis is often not good. The best way to confine pulmonary aspergillosis and treat is to have a facility equipped to do so. This means constructing new specialized care units for patients at high risk of infections by ensuring that the patient rooms have adequate capacity to minimize fungal spores count. This is accomplished through HEPA filtration that is 99.97% efficient. Is filtering particle greater than or equal to the 0.3 unimicron is in diameter, जो कि less than 0.3 मिली माइक्रोमीटर जो डायमीटर के और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको भी ये फिल्टर कर ले। एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट पोर्ट्स प्लेस्ड such that room air comes in from one side to the room and flow across the patient's bed and exist on the opposite side of the room. इसकी पूरी एक इंजीनियरिंग है जो इसकी रूम की डिजाइनिंग होती है। इसके अंदर हिपा फिल्ट्रेशन की इंस्टॉलेशन होती है, एयर किस तरह से आएगी, किस तरह से वो पेशेंट से हट के किस तरह से वो बाहर चली जाएगी और कितना फ्रेश एयर इसका जो है वो एयर सर्कुलेशन सिस्टम होना चाहिए। इसकी पूरी एक साइंस है, इसका भी आप लोगों के लिए एक लेक्चर है
जो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको देंगे। पॉजिटिव एयर प्रेशर मेंटेन continuously, there can be a problem when the patient has a second condition such as tuberculosis which require negative pressure. अगर पॉजिटिव प्रेशर्स में हम उन पेशेंट्स के लिए लेते हैं जहां पे हमें एयर को फिल्टर करना होता है, लेकिन अगर पेशेंट्स ऐसे हों जो कि डिजीज एयर में स्प्रेड कर रहे हैं तो सूरत में पॉजिटिव प्रेशर को कंसीडर को रिकमेंड नहीं किया जाता है, नेगेटिव प्रेशर एयर को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि आजकल कोविड भी है। इन विच केस एन एंट्री रूम विद अ सेकंड एग्जॉस्ट सिस्टम इज नीडेड। इसकी पूरी एक ड्राइंग और इसकी उसके साथ आपका एक लेक्चर होगा इंशाल्लाह जो आप लोगों को और आसानी देगा इसको समझने के लिए। One more fungal yeast cell, Candida. Candida is a yeast fungal pathogen. Candida albicans is the most common but non-C albicans pathogenic form. Some resistant antifungal medications have caused healthcare associated infections outbreak. Candida outbreaks hospital में देखा गया है. Human and animal are the reservoir for the Candida, and the Candida albicans is part of the normal flora of mucous membrane and can cause superficial infections such as thrush and the vaginitis. Candida species can adhere to the multiple host tissue, but an intact cell-mediated immune system can limit infections. But if this immune system is defective, such as AIDS, Candida can overgrow and lead to a mucocutaneous and cutaneous lesions and sepsis. जो कि अभी मैंने बात की थी कि कुछ पेशेंट में म्यूकोजल बैरियर इंजरीज होती हैं तो उसमें समटाइम इंटेरोबैक्टीरिया के साथ साथ कैंडिडा भी अपना काम कर रहा होता है। कैंडिडा multiplies in a bioforms structure that provide protection from antifungals. Intact skin is an effective barrier, but lesion, burn, and intravascular tube can allow invasion. Normal intestinal flora also suppress Candida. सब टाइम इस तरह से होता है कि बहुत ज्यादा जब एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं तो ये जो फ्लोरा होता है, जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, वो एंटीबायोटिक से किल हो जाता है और तो कैंडिडा जो है वहां पे उसको ग्रो करने का मौका मिलता है और वो इन्फेक्शन कॉज कर देता है। इसलिए कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स भी सोच समझ के देना चाहिए, बट डिसरप्शन कॉज्ड बाय द एंटीमाइक्रोबियल allows infection. C. tropical can cause invasive candidiasis, particularly in leukemia patients. Or Candida paraplegia is an environmental contamination and can be transferred on the hand and cause infection of the bloodstream. अगर hand wash किए बगैर कोई भी wound केयर की है या कोई लाइन इंसर्ट की है या कोई इन्वेजिव प्रोसीजर किया है तो ये ब्लड में जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। आप लोगों ने सुन रहे हैं अभी तक? सीधा चैट में कुछ नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके गुड, सही, वेरी गुड। सही। तो हमारा जो नेक्स्ट हमारा वायरस है, हमने अब तक बैक्टीरियाज पढ़े, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव्स, फिर हमने फंगस की एक दो टाइप्स पढ़ी और अब हम पढ़ते हैं एक दो कुछ टाइप्स वर्सिला वायरसेस की, तो जिसमें से वर्सिला जोस्टर वायरस पे हम बात करते हैं। ये जो वर्सिला जोस्टर वायरस है ह्यूमन हर्पीज वायरस भी कहलाता है। 3 इन द हर्पीज वायरस फैमिली कॉजेज बोथ चिकन पॉक्स, इसी की फैमिली से हर्पीज जोस्टर, शिंगल्स और चिकन पॉक्स भी आते हैं। The Varicella zoster virus contains double strand of the DNA and has a protective envelope. Onset, it gained entry to the host from the airborne droplet. It began to replicate. A rash, initially red, that become vesicular, appears about 2 weeks after initial infection, yani incubation period. With the infection running, it's occur in 10 to 21 days. While most chickenpox infections are mild, they can result in the viral encephalitis or pneumonia, especially in those who are immunocompromised. इसीलिए जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल डाउन हुआ होता है, उनके अंदर
रीअक्रंस होती है वर्सिला जोस्टर और हर्पिस, इसकी चिकन पॉक्स की भी। और लेकिन अगर कोई अडल्ट हेल्दी हैं, उनको अगर एक दफा ये डिजीज हुई है तो उनकी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तो उनके अंदर दोबारा से री इन्फेक्शन के चांसेस very rare. After infection, the host antibody-mediated immune response confer immunity to chickenpox. However, the virus remains dormant in the dorsal root ganglia or on the cranial nerve ganglia and can become reactivated. Reactivation results in herpes zoster. Herpes zoster का infection होता है वर्सिला अगर है तो। एक second please, excuse. Sorry. Okay. So reactivation results in herpes zoster involving severe pain along with the involved nerve and the vesicular rash, usually around the trunk or the head. Pain can persist for weeks or around the trunk. Pain can persist of the week or the months. Herpes zoster is spread by direct contact with vesicles, causing chickenpox in those who are not immune. मैंने इसका प्लान इस तरह से किया था कि आप लोगों के साथ मैं कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आमतौर पे हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, हाँ। तो आप लोगों को यहाँ तक वर्सिला जोस्टर तक मैंने पढ़ाया है। आप लोगों के पास 1 घंटा है, आप लोगों ने इसकी प्रीवियस स्लाइड्स को देखना है, और इंटरनेट आपके पास मौजूद है तो इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद आप लोग इसको स्टडी करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी फैमिली है जो हमने इसको देखना है, जो हमें हम इनकाउंटर करेंगे इनको जब हम हॉस्पिटल में देख रहे होंगे सबको। तो यस, बिल्कुल मिक्स हो रहा है, तो हम ये करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं। आप लोगों का जो असाइनमेंट है अभी का, मैं ये करती हूँ कि आप लोगों का असाइनमेंट डिवाइड कर देती हूँ। आप लोग ये करें कि अभी सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो हमने पीछे पढ़े हैं, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, उनको एक नजर देख लें और उसकी डिटेल्स अपने पास पढ़ लें। तो कल हम पहले फर्स्ट हाफ में, जो कल हमारा लेक्चर शुरू होगा, उससे पहले हम आप लोगों से थोड़ा सा इसका फीडबैक ले लेंगे। तो उसका फायदा ये होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन लोगों को नहीं अंडरस्टैंड हुआ, वो भी इसको इसमें वो कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स को ओनली आपको नाम आने चाहिए, और आपको ये आना चाहिए कि वो कौन से इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनका रिजर्वायर क्या है, और वो किस तरह से उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों ने ग्राम पॉजिटिव की पढ़नी है। फिर हम उस पे ऊपर रख देंगे कि ग्राम पॉजिटिव के बाद ग्राम नेगेटिव, एंड देन जो मोल्ड एंड आपके फंगाइज हैं उनको, और फिर देन वायरसेस। तो कल का जो फर्स्ट हाफ है हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद सेकंड हाफ में हम बाकी जो स्लाइड्स रह गई हैं हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को 12 से 1 बजे तक मुझसे वादा करना होगा कि आप लोग स्टडी करेंगे, ऐसा करेंगे? डॉक्टर नमिता, क्या रिपीट? मैं दोबारा इसकी मैं थोड़ा सा आप लोगों की चैट्स देख लेती हूँ। ओके, बिल्कुल गुलाम, ये बहुत सारी स्पीशीज हैं जो मिक्स हो रही हैं, तो इसलिए मैंने अभी आपका प्लान ये किया है कि हम ये करेंगे, और पीडीएफ में अपलोड हो सकती हैं तो हम लोग पीडीएफ में ही अपलोड करते हैं। जो लेक्चर्स हैं और जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसका मेरा ख्याल है आपको फरहान बेहतर बता सकेंगे वो कैसे करते हैं, और लेक्चर बिल्कुल रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। ठीक है उजैर, मैं कोशिश कर लेती हूँ कि अगर मुझे, मेरे पास चार्ट है नहीं ऐसा, लेकिन मैं कोशिश कर लेती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ चार्ट मिल जाए तो मैं मॉडल पे अपलोड करवा देती हूँ फरहान से कह के, और देख लेते हैं इसको जितना पॉसिबल है कि हम इसको आसान कर सकें। बिल्कुल होंगी, ये स्लाइड्स अपलोड हो जाएंगी, बिल्कुल
अपलोड हो जाएगा ये सारा लेक्चर इंशाल्लाह, और कल का भी। और इसके अलावा अगर कोई हमें और मटेरियल मिलता है तो मैं वो भी आप लोगों के लिए भिजवा देती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अच्छा राइट, व्हाट टू रीड प्लीज, मैं ये कह रही हूँ कि ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो हैं, आप लोग उसको एक दफा और स्टडी कर लें, जो हमने पहली स्लाइड्स में पढ़े हैं। आप लोगों को उसका रिजर्वायर पता होना चाहिए, आप लोगों का उनका नाम पता होना चाहिए, और उनका ट्रीटमेंट मोडेलिटी क्या यूज होगी वो पता होना चाहिए, और वो इन्फेक्शन कौन कौन से कॉज कर सकते हैं और हम उससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये आप पहले ग्राम पॉजिटिव देख लें, फिर हम ग्राम नेगेटिव देखेंगे, फिर हम फंगाइज देखेंगे, और फिर हम वायरसेस के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी बाकायदा कोई असाइनमेंट नहीं बनानी राबिया, आप लोग सिर्फ स्टडी करके आ जाएं, तो हम लोग चैट बॉक्स पे ही इसको देख लेंगे, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह एक बड़ा ग्रुप है, तो अगर मैं सबको बारी दूंगी तो वो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप लोग एक एक लाइन का लिखते जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, मेरा ख्याल काफी होगा, क्योंकि आगे भी काफी सारे अभी स्लाइड्स मौजूद हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि ये बहुत बहुत ही अहम चीजें हैं, ये आना चाहिए आप लोगों को। जी बिल्कुल होगा नादिया। डॉक्टर सारा ने बुक का नाम दिया है, आप लोग देख सकते हैं इस पे। कोशिश हम ये करेंगे, क्योंकि वी आर नॉट माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो हम लोग बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हम वो देखेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिजीज कॉजिंग एजेंट बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे जो एक डिजीज के बाद दूसरी डिजीज का भी कॉज करते हैं। उनका क्या रिजर्वायर क्या है, उनकी किस तरह से वो इन्फेक्शंस देते हैं, किस तरह से वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, और हम किस तरह से उसकी इंटरवेंशन कर वो उसकी किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अब आप लोगों का स्टडी टाइम स्टार्ट हो गया, पूरे 12 बज गए हैं, 12 से 1 बजे तक आपने पढ़ना है। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ में आप लोगों का ही पहले डिस्कशन होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।